آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ محمود احمد خان سے خبریں سنیے۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ ملک میں ڈیجیٹل انڈیا کے 10 سال مکمل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کو آتم نربھر بنانے میں ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کے رول کو کیا اجاگر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے دہشت پسندی سے متاثرہ کنبوں کو انتظامیہ کے ہر ممکن مدد کا دلایا یقین۔ ایل جی نائب وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری نے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں حتمی انتظامات کا لیا جائزہ۔ اور محرم الحرام کے مقدس مہینے کے پیش نظر عزاداری کے جلوسوں نیز مرثیہ و نواخوانی کی مجالس کا انعقاد جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا ایک عوامی تحریک بن گئی ہے اور یہ آتم نربھر بھارت نیز ملک کو دنیا کے لیے اختراعیت کا ایک بھروسہ مند شراکت دار بنانے میں کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کے 10 سال مکمل ہونے پر ایک بلاگ میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ڈیجیٹل حکمرانی سے اب عالمی سطح پر ڈیجیٹل لیڈرشپ کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی بدولت اب ایسی چیزیں ممکن ہو رہی ہیں جن کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نریندر مودی نے ڈیجیٹل انڈیا کے تحت شروع کیے گئے کئی عوام دوست اقدامات کا تفصیل سے ذکر کیا۔ دریں اثنا ملک میں ڈیجیٹل انڈیا کے 10 برس مکمل ہونے پر وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا پہل سے ٹیکنالوجی عام ہو چکی ہے اور اس سے بھارت عالمی سطح کے ڈیجیٹل پاور ہاؤس کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ طبی نگہداشت کا شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو یا تجارت و حرفت کا شعبہ ہو، ڈیجیٹل انڈیا نے ہر سیکٹر کو شمولیاتی اور ترقیاتی بنا دیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج گورکھپور اتر پردیش میں مہا یوگی گرو گورکھ ناتھ آیوش یونیورسٹی کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ یونیورسٹی اتر پردیش کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں صحت شعبے میں سنگ میل کی حیثیت اختیار کرے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران ان متاثرہ کنبوں کے معاملات کا جائزہ لیا جن کے کسی نہ کسی فرد کو پاکستانی پشت پناہی والے دہشت گردوں نے ہلاک کر دیا ہے۔ ایل جی نے ڈپٹی کمشنروں اور ایس ایس پیز کو ہدایت دی کہ وہ ان معاملات کو دوبارہ کھولیں جنہیں دانستہ طور پر دبایا گیا ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں ایف آئی آر درج کرنے اور ترجیحی بنیادوں پر لواحقین کو سرکاری نوکری دینے کی ہدایت دی۔ منوج سنہا نے مزید کہا کہ دہشت گردی سے متاثرہ کنبوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایل جی سیکریٹریٹ میں ایک خصوصی سیل قائم کی جائے گی۔ انہوں نے اس طرح کے کنبوں کو ہر ممکن مدد دینے کی یقین دہانی کرائی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران 3 جولائی سے شروع ہونے والی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں حتمی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو یاترا انتظامات میں کوئی بھی کسر باقی نہ رکھنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ یاترا کے تناظر میں ٹریفک ایڈوائزری کی وسیع پیمانے پر تشہیر کی جانی چاہیے تاکہ عام لوگوں کو دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ منوج سنہا نے مختلف ضلعوں کے ترقیاتی کمشنروں پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام لاجمنٹ مراکز اور سینیٹیشن یونٹ اصل حالت میں ہوں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر سے رامبن اور اننت ناگ ضلعوں کے اسپتالوں کے لیے ایمبولینس گاڑیوں کے ایک فلیٹ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ 5 ایمبولینس گاڑیاں نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا نے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے تحت عطیہ کے طور پر دی ہے۔ ایل جی نے اس سماج دوست پہل کے لیے NHAI اور قاضی گنڈ ایکسپریس وے پرائیویٹ لمیٹڈ کی ستائش کی۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے آج سونمرگ کا دورہ کر کے وہاں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ یاترا آپسی رواداری اور بھائی چارے کی عظیم مثال ہے۔ انہوں نے یاترا کے سلسلے میں کی گئی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بعد میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ بابا برفانی یاترا شروع ہونے والی ہے پرسوں سے، اسی کا ریویو میٹنگ لینے آیا تھا اور میں نے ٹریک اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے یہ کہنے میں خوشی ہو رہی ہے کہ بی آر او کا بہت بڑا کام میں نے دیکھا اور جس کام کے لیے بی آر او جانی جاتی تھی وہ بی آر او نے وہاں وہ ٹریک بنایا ہے۔
उधर चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज भगवती नगर जम्मू में यात्री निवास का दौरा करके वहां सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने यात्री निवास में तमाम बुनियादी सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने यात्रा के आसान इनेकाद के लिए तमाम महकमों के माबैन बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर जम्मू, IGP जम्मू, IG ट्रैफिक, DC जम्मू और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आज डॉक्टरों का कौमी दिन मनाया जाता है। ये दिन समाज के तई डॉक्टरों के बेलोस खदमात, उनके हमदर्दाना जज्बे और कीमती जानों को बचाने में उनकी काविशों के लिए उनकी इज्जत अफजाई के अतराफ में मनाया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर डॉक्टरों के बेमिसाल काम के लिए उन्हें सलाम पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में LG ने कहा कि कौम को डॉक्टरों की अजीम खदमात और गैर मुतजलजल अज़्म पर फख्र है। नेशनल डॉक्टर्स डे के सिलसिले में आज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा में एक तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इतू ने तिब्बी निगहदाश्त के इस शोबे में डॉक्टरों और दीगर पेशेवरों की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के डॉक्टरों ने मुश्किल वक्त में लोगों की खिदमत की है, जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। तकरीब पर सिकिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए सकीना इतू ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। सिक्किम्स में बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी जो हैं वो लिए गए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा जो यहाँ पे इक्विपमेंट लगाया गया है लाइनेक जिसका नाम है, वो 11 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसके अलावा जो यहाँ पे कई और टेस्टिंग फैसिलिटीज जो इनॉग्रेट की गई हैं, जिसके लिए सरकार ने ऑलरेडी फंडिंग की है। इसी तरह कई और इक्विपमेंट जो इन्होंने डिमांड की हुई थी वो ऑलरेडी जो है इनको दिए गए हैं, लगाए गए हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझती हूँ कि हमने सारा कुछ कम्प्लीट कर दिया, क्योंकि सिक्किम्स के ऊपर बहुत ज्यादा रश होता है, लोग यहाँ पहुँचते हैं इलाज करने के लिए। हमें इसको और मजबूत करना पड़ेगा। जो भी इस हॉस्पिटल के लिए सरकार कर सकते हैं, जो इनकी डिमांड होगी, उसको जरूर इंशाल्लाह देखा जाएगा। डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर डॉक्टरों और मरीजों के दरमियान रिश्तों की इफादियत को भी उजागर किया जाता है। इस दिन की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर के सीनियर और मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट और गौरी कोल फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर उपेंद्र कोल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, डॉक्टर और पेशेंट की जो आपस की रिलेशनशिप है, ये बहुत ही पायस रिलेशनशिप है। जब तक ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी ना हो, एक दूसरे में कॉन्फिडेंस ना हो, तो उसमें काम उतना अच्छा नहीं हो सकता। तो ये रिलेशनशिप हमें और अच्छी करनी है और इसमें ऐसा कुछ करना है कि हम एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम को और स्ट्रेंथन करें। जब मरीज डॉक्टर के पास आता है, कई किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, और कई मरीज होते हैं कि वो अपनी जो प्रॉब्लम है डॉक्टर को खुल के बताते हैं, तो डॉक्टर का ये फर्ज हो जाता है कि वो जो बता रहा है वो अपने तक ही रखे और उसको जो सुलझाने के तरीके हैं वो इस तरीके से बताए कि उसको जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेके कि ये जो खबर है जो उसने बताया ये बिटवीन डॉक्टर और पेशेंट ही रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिकल एथिक्स का। आज कौमी चार्टर्ड अकाउंटेंट दिन मनाया जाता है। ये दिन हर साल 1 जुलाई को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के यौम तासीस की याद में मनाया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस दिन के मौके पर तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में LG ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के काम की सताइश करते हुए विकसित भारत के सफर में उनके रोल को उजागर किया है। इस दिन की अहमियत के बारे में जम्मू के एक मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुज महाजन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, CA डे हमारे प्रोफेशन के फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण रोल का जश्न है। ये एक ऐसे कम्युनिटी का हिस्सा होना एक सम्मान है जो एथिकल स्टैंडर्ड्स और एक्सपर्टीज को वैल्यू देता है। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में CAs फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल जिम्मेदारी से और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो। इसे करप्शन को रोकने और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने में मदद मिलती है। प्राइवेट सेक्टर्स में CAs इंडिपेंडेंट ऑडिट्स और अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रस्ट बनाते हैं। वो ये इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और रिलायबल हो, जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए जरूरी है।
आकाशवाणी श्रीनगर के रीजनल न्यूज़ यूनिट का सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कारकर्दगी और हसूलियाबियों पर मबनी एक खुसूसी प्रोग्राम आज रात 8:30 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से नश्र होगा। प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत महकमे के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट हैं। उनके साथ हम कलाम हैं आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबरा तारिक राथर। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। आज मुहर्रम उल हराम के मुक़द्दस महीने की 5वीं तारीख है। इस मुक़द्दस महीने के दौरान नवासा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत ने मैदान करबला में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। फजीलतों से पुर इस महीने के तनाजुर में शोहदाए करबला को खराज अकीदत अदा करने के लिए आज़ादारी के जुलूसों, मरसिया ख्वानी और नोहा ख्वानी की मजालिस का इनकाद जारी है। दिल छुगम सडा या हुसैन करा या हुसैन करा या हुसैन दरियासना मुहर्रम उल हराम की फजीलत के बारे में अंजुमन शरई शरीयत आबाद बडगाम के सदर आगा सईद मोहम्मद हादी अल मौसवी अल सफ़वी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो उन्वान नुमाइंदे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और औलियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, वो जो जिन्होंने इस दीन के लिए तूल तारीख कुर्बानियां दी, उनका नुमाइंदा बन के अपने वक्त के बातिल के सामने न झुक के वो आवाज़ बुलंद करता है और वो मकतब की अलम जो है बुलंद रखता है, जो इंसान को नजात दुनियावी व उखरवी देने के लिए पाबंद है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बातिल का इनकार न करते तो शायद आज हक व बातिल की पहचान करना बड़ी मुश्किल बात होती। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान राबी ने आज अलमगिरी बाजार श्रीनगर का दौरा करके वहां इमामबाड़ों में मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो अज़ादारों के लिए हर तरह की बुनियादी सहूलियाती दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। बाद में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, हर करबला के बाद ही इस्लाम जिंदा होता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो शहादत पेश की, वो शहादत पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलमी इंसानियत के लिए एक मिसाल है। उस मिसाल में कोई भी और मिसाल टिकती नहीं है। जिस तरह से उन्होंने जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया और इस इस्लाम के झंडे को बुलंद कर दिया। आज यहाँ आने का मतलब है कि हम इमाम बाड़ा में आए कि यहाँ पे देखें कि कैसी अरेंजमेंट्स हैं। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इमाम बाड़ा जो जड़ीबल में वाक़या है, यहाँ इनको पानी की जो किल्लत है वो जल्द अज जल्द हल हो जाए। मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से आज अलम साहब नरवरा ईदगाह में एक रूह परवर हुसैनी मजलिस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान उलमा ने वाक़या करबला पर तफसील से रोशनी डाली। इस मौके पर नोहा ख्वानी, खदमतुल मौज़मात और दरूद अज़कार की मजालिस भी आरास्ता हुई। आज आकाशवाणी श्रीनगर, जिसे पहले रेडियो कश्मीर श्रीनगर के नाम से जाना जाता था, का यौम तासीस है। 1 जुलाई 1948 को आज ही के दिन उस वक्त के जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इसकी नशरियात का आगाज़ किया था और उनकी अहलिया अकबर जहां बेगम ने स्टेशन के इफ्तिताई नशरिये में कुरान पाक की तिलावत की थी। आज के दिन की मुनासिबत से वादी के एक मारूफ ब्रॉडकास्टर अब्दुर्रहमान भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, रेडियो कश्मीर यानी मौजूदा आकाशवाणी श्रीनगर के यौम तासीस पर अपने तमाम सुनने वालों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुकामी रेडियो स्टेशन ने पिछले लगभग 8 दहाइयों से अपने सामाइन के साथ जो रिश्ता जोड़ रखा है वो हमेशा हमेशा कायम दाहिम रहे, यही मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि आप रेडियो को अपना दस्ते ताउन और प्यार मोहब्बत और इसमें काम करने वालों की हौसला अफजाई करते रहिएगा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम।
हर कोई अपने देश से प्रेम करता है, तो फिर उन लोगों का साथ क्यों देना जो हमारे भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दाम के बारे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के एक कंसल्टेंट डॉक्टर बिलाल अहमद पहलवान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ड्रग जो है ये हमारे माशरे में एक नोसुर की तरह है। जैसे एक कैंसर की बीमारी एक इंसान को धीरे धीरे खत्म करती है, इसी तरह ये ड्रग एक इंडिविजुअल ही को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को धीरे धीरे ये अपनी लपेट में लेके उसको खत्म करता है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान है हमारी सोसाइटी में। इससे हमें सिर्फ ये नुकसान नहीं है कि इससे हमारी सेहत बिगड़ जाती है, इससे हमें माशी हालात, इसमें हमारी फैमिली है वो इफेक्ट होती है, क्रिमिनल भी बन सकता है। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान पूंछ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अमलाई जा रहे प्रोजेक्टों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने दारा हारवन के डीडीसी मेंबर मोहम्मद शाबान चौपान और दारा हारवन श्रीनगर के उसके दलाल गुलाम मोहम्मद खटाना को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने लोगों से अपील की है कि वो रिश्वतखोरी तलब करने के किसी भी मामले को एसीबी के नजदीकी दफ्तर की नोटिस में लाए। 1992 बैच के IRS ऑफिसर विक्रम सहाय, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के ओहदे पर फाइज हैं, को चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की हैसियत से तरक्की दी गई है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने पार्टी के दीगर लीडरों के हमरा त्रिकुटा नगर जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर आज एक अवामी दरबार का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने अपने अपने मसाइल को उजागर किया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पे हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:24 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:47 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें दें इजाजत। खुदा हाफिज।